हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम करेंगे स्पेशल एलटी मैराथन क्लास 2, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस का मैराथन करेंगे और आपके सारे जितने भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनको देखेंगे कितने क्लियर हुए हैं। क्लियर? सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. ओके, question number 1 is, for an amplitude modulated wave, the maximum amplitude is found to be 8 volt, while the minimum amplitude is found to be 2 volt. The modulation index is, okay, so basically ये आपसे क्या पूछ रहा है? इट इज आस्किंग फॉर द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स मतलब कि म्यू. ही इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ म्यू. जस्ट अ सेकेंड. या, so as we know, mu is equals to V max minus V minimum over V max plus V minimum. Clear? This is the value. This is basically, this is the formula. Now we have to put the value. The V max is given as 8 minus 2 over 8 plus 2. So it will be 6 by 10. So it will be 0.6. So the third part, means the C part, is the correct option. Clear? Now moving to the next question. Next question is, the RMS value of input voltage is full wave rectifier having 2 diodes is 300 by root 2 volt. The peak inverse voltage of each of diode of rectifier will be. So आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? यू विल सी in the question, RMS value of input of full wave rectifier given है आपको 300 by root 2V. अब पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब कि आपका Vm will be given as peak inverse voltage of each of the diode of the rectifier. Means we can write Vm root 2V is equals to 300 over root 2 multiply by root 2 means 300. okay, so अगर मैं peak inverse voltage of each diode क्या हो जाएगा? 2Vm. It means 600 volt. So option D will be the right answer. Now moving to the next question, question number 3. The percentage voltage regulation of voltage supply provides 100 volt at no load and 95 volt at full load in a rectifier. Okay, so basically in this question you have to find out the percentage voltage regulation. Okay, now percentage
percentage voltage regulation will be find it out as percentage. I will take the different color. Percentage voltage regulation is equals to voltage means no load voltage minus full load voltage over full load voltage. Okay, so we can say VNL तो क्या आपका क्या है, नो लोड वोल्टेज. नो लोड वोल्टेज का मतलब क्या है आपका 100, और VFL का मतलब है ये क्या है, वोल्टेज एट फुल लोड. तो परसेंट VR will be 100 minus 95 over 100. सॉरी 100 minus 95 और यहाँ क्या आएगा 95 multiply by 100. So when we calculate it तो ये हो जाएगा 5/95 into 100. ओके, तो यहाँ से हम करेंगे डिवाइड. तो ये कर लो पहले, 5 और 5 9 45. ओके, तो ये बचा 100/19. तो ये आएगा आपका 5.26%. इट मीन्स 5.3% will be the correct option. Your option number C will be the correct option. Okay, now moving to the next question. Question number 4. Now here you will see a circuit. You have to find out the output voltage. How will you find? You will see that यहाँ पे कितना वोल्टेज गिवन है, -3. दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3. ओके, करस्पॉन्डिंग R1, R2, R3. ओके, एंड हेयर इज RF. ओके, so can we write it in this way? What is the value of V1? minus 3 volt. V2 is equals to minus 6 volt. V3 is equals to 8 volt. R1 is equals to 3 kilo ohm. R2 is equals to 3 kilo ohm. R3 is equals to 3 kilo ohm. Okay, so we have to find the voltage output. So we will write V output is equals to minus RF V1 over R1 plus V2 over R2 plus V3 over R3. Okay, now you will see here this is RF. Okay, now putting all the values in the formula, -9 bracket -3 over 3 plus -6 over 3 plus 8/3. Now 3 is taken as common, so -9 over 3. Here the term is -3, -6 and plus 8. Clear? So we will write 3 से 3 cancel, तो -3 बचेगा ऊपर और ब्रैकेट -9 plus 8. It will be -3 -1, so this will be 3 volt. So option number 3
will be the right answer. Clear? Now next question. Question number 5. See, if potential is given by V is equals to 5x square plus xy, what will be the electric field at point 1, -2 and 0? Basically the points were given to you, okay, and they were asking about the electric field at these point. Okay, so we will write vector E is equals to minus del V over del X I cap minus del V over del Y J cap minus del V over del Z K cap. Clear? Now put the values. It will be like minus d by dx bracket 5 x square plus xy bracket 1 I cap minus del over del y 5 bracket x square plus xy j cap minus del over del z 5x का स्क्वायर 5x का स्क्वायर प्लस xy k कैप. क्लियर? तो यहाँ से जो e की वैल्यू आएगी वो निकलेगी 5 माइनस 2x प्लस वाई आई कैप minus xj cap is equals to 0. Clear? So this value has come for 8 1 2 at 1 minus 2 or 0. So vector E will be minus 5 j cap. Clear? Any doubt? So we can say the option number A or first option will be the correct answer. Okay, now moving to the next question. Question is a silicon sample having intrinsic carrier concentration 1.5 into 10 की power 13 per centimeter cube is dropped by a trivalent impurity of 10 की power 18 centimeter per centimeter cube. Concentration. After doping, the number of electrons in the sample will be about. देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. Intrinsic semiconductor. Okay, so basically intrinsic semiconductor में we know that concentration of electron is equals to concentration of holes is equals to concentration of intrinsic semiconductor is equal. So can I write NeNH approximately equals to n square? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं Ne is equals to n square over L NH. Clear? Now we get the formula, just we have to put the values.
Now put the value, it will be 1. n की value put करो, 1.5 into 10 की power 13 का square over 10 की power 18. So on solving it, we get to know that it will be written as 2.25 into 10 की power 26. 10 की power 26 over 10 की power 26 over 10 की power 18. So on solving, we get the formula into 10 की power 8. ये हो जाएगा 5.2. तो 2.25 into 10 की power 8 क्या होगा? That is per centimeter cube. It means option D will be the correct answer. Clear? Now moving on to the next question. Question number 7. For a transistor, beta is the base transport factor and gamma is emitted injection efficiency. The current transport ratio alpha is given by. So basically we have to find out the ratio. Okay, so we will write alpha is equals to del IC over del IE. ओके, और बीटा क्या है? बीटा की वैल्यू हो जाएगी डेल IC ओवर डेल IB. क्लियर? सिमिलरली फॉर गामा के लिए हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट del IC over del IB over del IE over del IB. सो कटने वाली टर्म्स कट जाएंगी. वी विल गेट del IC over del IE is equals to alpha. So we can write, we know alpha is equals to beta upon gamma. Okay, so we will see the option number B will be the right answer. Now moving on to the next question, question number 8. Question number 8 is, a common emitted amplifier is designed with NPN transistor. ओके, एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है जिसको डिज़ाइन करा गया है विद द हेल्प ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, जिसकी अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.99, और जो इनपुट इम्पिडेंस है वो कितना है? 1 किलो ओम, और जो लोड है वो कितना है? दैट इज 10 किलो ओम. ओके, सो एज वी नो दैट अल्फा की वैल्यू गिवन है, so we will write alpha is equals to 0.99. okay, now if we see the value AV, that will be written as AV is equals to beta R2 over R1. okay, R2 over R1. So by applying a formula, it will be alpha R2 over 1 minus alpha R1. Clear? So now putting the values, it will be 0.9 over 1 minus 0.99 into 10 over 1 is equals to 0.99 over 0.01 multiply by 10.
it will be 990. Clear? Understand now? So by from the options we can say the option number B, that is 990 will be the correct answer. Okay, now moving on to the next question. Question number 9. A base current of a transistor is 105 microampere and collector current is 2.05 milliampere. The value of alpha will be equal to. बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर गिवन है आपको, बेस करंट, ठीक है, और यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू गिवन है, तो आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा की. ओके, एज वी नो आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस IE is equals to IB plus IC. So IE की वैल्यू क्या आ जाएगी? IE will be 105 into 10 की पावर -6 plus 2050 into 10 की पावर -6. Now on solving it we get 2.555 into 10 की पावर 6 a. ओके, सो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी IC ओवर IE. तो IC की वैल्यू 2050 इंटू 10 की पावर -6. ओके, और यहाँ आएगा आई की जगह 2155 इंटू 10 की पावर -6. क्लियर? सो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया, और आगे से मैंने इसको सॉल्व करा, द वैल्यू इज 0.95. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन the A part is known as your answer of this question. Okay, so we will say option A will be the correct option. Okay, now moving on to the next question. Question number 10. A transistor is connected in common emitter. ट्रांजिस्टर किस में कनेक्टेड है? कॉमन एमीटर में. क्लियर? सो वी कैन से कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन. collector voltage is 8 volt and voltage drop across the existence of 800 ohm. Connect in collector circuit is 0.5 volt if current gain alpha is equals to 0.96, then base current will be. ओके, तो आपको क्या निकालनी है? बेस करंट. सो वी कैन राइट क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.96. वी अल्फा इज इक्वल्स टू 0.96. VC की वैल्यू क्या आएगी? 8 वोल्ट. तो IC कितना हो जाएगा? IC विल बी VC ओवर RC. सो नाउ पुट द वैल्यू. IC इज इक्वल्स टू 0.5 over 800. Okay, so it will be 5/8 multiplied by 10 की पावर -3. Okay, so 5 into 10 की पावर -3. When I solve it, it will give the value 0.625
milli ampere. Okay, now for beta, if I talked about beta, beta क्या होगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा. यस, अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, अल्फा इज 0.96. yes, so on putting the values I will get 0.96 minus 1 minus 0.96, so they denied 96 by 4. ओके, मतलब कि 24 हमें इसका क्या मिलेगा, बीटा. तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो बीटा है वो होता है डेल आई सी ओवर डेल आई बी. इट विल बी 0.625 ओवर डेल्टा आई बी. ओके, सो डेल्टा आई बी की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 24. तो ऑन पुटिंग द वैल्यू आई विल गेट 625 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6. तो 26 माइक्रो एम्पियर विल बी द आंसर. So this C part, this will be the correct answer. Clear? Now moving on to the next question, question number 11. Okay, now we have to find out the value. The output of XOR gate is given by, okay, so the output of XOR gate is given by A, just a second, C is given by A bar dot B plus A dot plus B bar. Clear? Now you will see इसका जो setup होता है, it should be look like this, A and B. Okay, now we have formed the gate. ओके, अब A B दो इसके अंदर क्या आउटपुट इनपुट्स, A B एंड आउटपुट. A क्या है, इसका ट्रुथ टेबल लिखो 0 0 1 1, इसका है 0 1 1 0. ओके, तो आउटपुट 0 0 0 0 1 1 1 1 1 and 1 0 0 0 0 1. This is 0 and this is 1. तो 1 1 1 1 भी क्या हो जाएगा आपका, 1 1 is also 0. Okay, any problem? No? Okay, so basically we get the value for OR gate. Next question, question number 12. The circuit given below is a logical circuit. ठीक है, आपको क्या गिवन है, एक सर्किट गिवन है जिसके अंदर क्या है, एंड गेट, मतलब 1 2 3 क्या लगा रखे हैं आपके, बेसिकली गेट्स लगा रखे हैं. ओके, तो आपको इसके इनको देख के इनकी क्या बनानी है, ट्रुथ टेबल बनानी है और फिर ये बताना है कि ये कौन से गेट का है. ओके, सबसे पहले हम बनाएंगे
ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में एक इनपुट ए होगा, एक इनपुट बी होगा और एक होगा ए प्लस बी। एक इनपुट जो ए का है वो है 0 0 1 1 और बी में है 0 1 0 1। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या होगा 0 1 1 1। तो therefore दिस इज और गेट। ये ट्रुथ टेबल आपको किसकी मिल रही है, ये आपको मिल रही है और गेट की। तो जो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, एनी डाउट? ओके, नाउ moving on, next question. If alpha is 0.95 for a transistor, what will be the beta? देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, अल्फा गिवन है और बीटा वो पूछ रहा है, तो आप कैसे करेंगे? यू विल राइट बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। क्लियर, अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 0.95, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इट विल बी अल्फा इज इक्वल्स टू 0.95। अब बीटा जो होगा वो होगा 0.95, 1 माइनस 0.95। ओके, सो 0.95 पे एज इट इज ही लिख लेंगे हम। ओके, और यहाँ आ जाएगा आपका 0.05। ओके, ये पॉइंट यहाँ से हटाओ, अब एलिमिनेशन करो, इनका एलिमिनेट करो, तो बीटा की वैल्यू आएगी 19। क्लियर, बीटा की वैल्यू कितनी आई, 19। सो ऑप्शन नंबर बी will be the correct answer. Okay, now moving to next question. Question number 14. If alpha, sorry, question number 14, the slope of the characteristic curve of diode is 2 into 10 की power minus 2 mega ampere per volt. The plate resistance of the diode will be, plate resistance of diode will be, देखो अगर मैं बात करूं प्लेट रेजिस्टेंस की, प्लेट रेजिस्टेंस, प्लेट रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्लोप। क्लियर, 1 upon slope, and the slope is given in the question. It will be rp is equals to 1 upon 2 into 10 की पावर minus 2 into 10 की पावर minus 3। तो जो rp है उसकी वैल्यू है क्या आ रही है, 50 किलो ओम। क्लियर, कितना आ रहा है, 50 किलो ओम। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है आपका, this will be the correct option. Okay, now moving on to the next question. Next question is the current gain for a transistor working on common base amplifier is 0.96 if the emitter carries is 7.2 milliampere, the base current will be। आपको बेस करंट्स बताने हैं, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, अल्फा इज इक्वल्स टू
कितनी गिवन है? 0.96, IE गिवन है 7.2 मिली एम्पियर, अल्फा इज इक्वल्स टू IC ओवर IE। IC कितना है? अल्फा डेल IE, तो मैं लिख सकती हूँ इसको 0.96 मल्टीप्लाई बाय 7.2। यस। अब देखो हमें क्या निकालना है? करंट ऑफ बेस इज इक्वल्स टू करंट ऑफ एमीटर माइनस करंट ऑफ कलेक्टर। तो यहाँ से ही हो जाएगा 7.2 माइनस 7.2 मल्टीप्लाई बाय 0.96। ओके, नाउ यहाँ से हमने क्या लिया? 7.2 कॉमन लिया तो बच गया 1 माइनस 0.96। ओके, so it will become 7.2 into 0.04 is equals to 0.29 milli ampere. Clear? So option number C. Option number C will be the correct answer. Now moving on to the next question, that is question number 16. Clear? Question number 16 is, given the equation angular momentum is equals to alpha beta minus gamma upon time into velocity, which of the following are possible dimensions of alpha, beta and gamma? Clear? तो आपको यहाँ से पता है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? They were talking about angular momentum, है ना? So we will write angular momentum. Angular momentum. AM. Okay. So I will write alpha beta minus gamma upon time velocity. Okay. So we will write AM. यहाँ लिखो alpha beta minus alpha beta minus ओके गामा अपॉन टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी माइनस गामा अपॉन टाइम, और फिर है माइनस गामा अपॉन टाइम वेलोसिटी. क्लियर? सो वी विल राइट दिस AM alpha beta comma velocity and gamma upon time multiplied by velocity has same, just a second, has same dimension and is the direction same dimension, and that is the dimension ml2 t minus 2. So we will write have the same dimension, and that is there is has some dimension. So see, यहाँ पे हमने क्या लिखा? ये सारी वैल्यूज लिख ली थी, तो अब हम यहाँ पे डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी
ml² t की पावर -1 is equals to alpha beta into lt -1. So from dimension of velocity is lt -1 and ab is equals to ml. So either of alpha beta can be or m or l. Clear? So we can write gamma upon time into velocity. ये क्या है velocity? ml² t -1. ओके, क्या आएगा? ml² t -1. और अगर मैं इसकी बात करूँ गामा lt की, तो ये हो जाएगा ml² t -1. क्लियर? और ये गामा क्या है? m बीटा is equals to l gamma is equals to तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी अल्फा विल बी m, बीटा विल बी l और गामा विल बी mlt. Clear? So we can say that mlt, like your question number 2, that will be a correct option. Part 2 will be the correct option. Okay, just a second. Yes, so B part will be the correct option. Now moving on to the next question. Next question is if force F, velocity v and time t are taken as the fundamental dimension. ये हमने क्या लिया है? Fundamental dimension. तो instead of mass, length and time, what will be the dimension of linear momentum? लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है जहां पे फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को आपको फंडामेंटल यूनिट लेके चलना है. जैसे कि हमें पता है, देखो इसको करने का आसान तरीका, यूनिट्स एंड डायमेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल राइट सी फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? mlt -2. यस, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ? F is equals to m l over t. Clear? So l upon t को क्या लिख सकती हूँ? v. तो we will write F is equals to m capital V over capital T. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ft is equals to m v. तो यहाँ से p is equals to f t. Clear? P is equals to f t. So your option number B will be the right answer. Okay. Now moving on to the next question. Next question is the matching. Here you will see there is one list 1 and another one is known as list 2. दो लिस्ट है आपकी, जिसमें आपको क्या करना है? लिस्ट 1 का वेक्टर कॉम्बिनेशन और लिस्ट 2 में क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज. दोनों को चूज करने हैं और एप्रोप्रिएट वर्ड्स बताने हैं. नीचे जो कोड दे रखा है उनसे आपको क्या करना है? आंसर करना है. जैसे कि लिस्ट 1 में क्या है? लिस्ट 1 में आपका है स्केलर, वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट. और लिस्ट 2 में है मास, टॉर्क, वेलोसिटी, वर्क डन. क्लियर? अब आपको नीचे कोड्स दिख रहे होंगे ए बी सी डी. ओके, सो
आई कैन से दैट स्केलर क्या है, व्हाट विल बी द स्केलर। देखो स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि रिक्वायर करती हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, वो कंप्लीट सिग्निफिकेंस रखते हैं स्केलर की। क्लियर। और जो वेक्टर होते हैं वो क्या है, वो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि रिक्वायर करती हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ठीक है। सो आई थिंक स्केलर और वेक्टर में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर स्केलर प्रोडक्ट के लिए वी विल यूज इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दो दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, स्केलर क्वांटिटी, तो जो स्केलर होगा या जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जांपल आपको वर्क निकालना है, तो वर्क क्या है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ऐसे ही जो प्रोडक्ट होगा टू वेक्टर्स का, उससे हमें क्या मिलेगी, वैल्यू मिल जाएगी। ओके। एंड थर्ड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट, लास्ट वन। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, वो वेक्टर प्रोडक्ट है जहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट को नीड करना, बेसिकली जो आपके प्रोडक्ट है, तो अगर मैं इसमें मैचिंग करूं तो आपको मैचिंग से पता चल रहा है कौन सा किस में जाएगा। यस। देखो स्केलर, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है इसके अंदर, we can say that scalar quantity is mass. Okay, now if we talked about the vector, okay, vector, vectors क्या गए, vectors बेसिकली जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, वर्क, वर्क डन में क्या होता है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली फॉर द वेक्टर्स देयर इज नो वन, if the product, we can say vector product if the product of two vectors yields vector quantity means, जैसे कि मैं बात करूं आपसे टॉर्क की, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, जहां भी हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका वेक्टर। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं स्केलर वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये तो जाएगा मास के साथ, वेक्टर किसके साथ जाएगा, वेक्टर विल गो विद वेलोसिटी, स्केलर विल गो, वेक्टर scalar will go with work done and vector will go with torque. Clear? So I think option number 1, this A, will be the correct option. Now moving to the next question, question number 19th. Okay. Question is, the magnitude of sum of two vectors, vector A and vector B, comes out. So less than mod A minus B, more than mod A plus mod B, either less than mod A minus mod B or greater than A plus vector A plus vector B. Okay. See, we will understood it with an example. एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। ओके। देखो मैंने एग्जाम्पल लिया, वेक्टर A इज इक्वल्स टू
3i plus 4j और वेक्टर b इज इक्वल्स टू 12i प्लस 5j। अब जो मोड ऑफ ए नहीं आएगा, ओके, मोड ऑफ ए, वो मोड ऑफ ए हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। So we can say mod of A is equals to 5. Clear? Now mod of B. Mod of B क्या होगा? अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा रूट 144 प्लस 25 इज अंडर रूट 169। मोड बी की वैल्यू है 13। मोड ए आपका आया 5 और मोड बी आया 13। क्लियर? तो अब आपको a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी, ओके, a प्लस बी निकालेंगे तो इट विल बी 12 प्लस 3i प्लस 5 प्लस 4j। a प्लस b इज इक्वल्स टू 15i प्लस 9j। ओके, सो a प्लस b का मॉड क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, सॉरी दिस इज 15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। So we will see a plus b will be 17.492. So mod of a minus mod of b, mod of a minus mod of b is equals to 5 minus 13 is equals to minus का 8। ऐसे mod of a plus mod of b is equals to 5 plus 13 is equals to 18. Okay, so I can say from this example I can say कि जो मोड है जो आपका मोड है मोड a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a माइनस बी। क्लियर? a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड a माइनस मोड बी। ऐसे ही मोड a प्लस मोड a प्लस बी इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू a minus vector a plus vector b, means we can say the option number D will be the correct answer. Okay, now moving on to the next question. Next question is question number 20. The value of lambda for which vector 2i plus j plus 3k and i plus i minus alpha j lambda j plus 4k. तो बेसिकली वी कैन से दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर एफ एन वेक्टर सॉरी this is vector 1 and this is vector 2. Okay, we have to find out alpha. So we can see f1 is equals to 2i plus j plus 3k. ये तो एक फोर्स हो गई, दूसरी लिखेंगे f2 is equals to
I माइनस लैम्डा जे प्लस 4k। क्लियर? तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 0। यस, तो जो F1 डॉट F2 है वो क्या होना चाहिए? 0। यस, तो हम लिखेंगे F1 F2 mod of F1 mod of F2 cos theta is equals to F1 F2 cos 90 is equals to 0. Okay. So we can write the equation 2i plus j plus 3k. ओके, और ऐसे ही हम क्या करेंगे? दूसरी वैल्यू को पुट कर लेंगे। दूसरी वैल्यू क्या है? आई माइनस लैम्डा जे प्लस 4k इज इक्वल्स टू 0। तो 2 माइनस लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 14। सो ऑप्शन ए will be the correct answer. Okay. Now moving on to the next question. Question number 21. Knocker delta is mixed tensor. What is the rank? 0, 1, 2, 3. जो Knocker delta है वो mixed tensor है of rank बेसिकली हमें निकालनी है। ओके, कैसे निकलेगी? देखो, हमें पता है कि ये क्या है? डेल आई जी। यस, तो डेल आई जी जो होगा वो क्या होगा? डी एक्स आई ओवर डी एक्स जे। ओके, तो डेल आई जे क्या हो जाएगा? डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स जे डॉट डेल एक्स एल ओवर डेल एक्स एम डेल एल एम। क्लियर? तो यहाँ पे डेल आई जे इज इक्वल्स टू डेल एक्स वन एक्स एम, फिर हो जाएगा डेल एक्स वन डेल एक्स वन। ओके, तो ये आ गया डेल एक्स वन ओवर डेल एक्स एम डेल एक्स आई और डेल एक्स जे, और ये जाएगा डेल एल एम। ओके, सो यहाँ से अगर मैं देखूं, ये बेसिकली जो इक्वेशन है ये हमें क्या बता रही है? एक नोकर डेल्टा है जो कि मिक्स है दो टेंसर क्वांटिटीज से के साथ। तो वी कैन से मिक्स टेंसर रैंक 2। ओके, third will be the right answer. Clear? Any doubt to anyone? No? Okay. Now moving on to the next question. Question number 22. See. In question number 22, question says the sum of three vectors that is shown in figure is 0. What is the magnitude of OC? देखो, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे वेक्टर्स को देख के बात करूं, तो जो वेक्टर ओ है वेक्टर ओ ए, वो किसके बराबर है? -5j। और जो वेक्टर ओ बी है वो किसके बराबर हुआ? i5i के। सो जो आपका ओ सी होगा वो क्या होगा? ओ सी cos 45 -1 प्लस
OC sin 45J. Clear? So we will write OC minus OC over root 2 I plus OC over root 2 J. Clear? So यहाँ तक आ गया. रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट विल बी R इज इक्वल्स टू OB minus OC by root 2 I प्लस माइनस के 5 प्लस OC ओवर रूट 2. ओके, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 0I प्लस 0J के बाद नहीं मिला. तो वी कैन से जो OB है वो है OC ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो यहाँ से जो S की वैल्यू है S OC ओवर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, आप OB की वैल्यू निकाल रहे थे, OB इज इक्वल्स टू OC बाय रूट 2. अब OB की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस OC बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो यहाँ से मैं वैल्यू लिख लूँ OC बाय रूट 2. OC बाय रूट 2, OC बाय रूट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी 5. तो OC की वैल्यू हो जाएगी 5 रूट 2. क्लियर? सो आंसर विल बी 5 रूट 2. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी विल बी द right answer. Okay, now moving to the next question. Question number 23. If for any two null vectors the magnitude of the sum of these vector is equal to the magnitude of the difference of these vectors, then the angle between the vector is. हमें मतलब इसके अंदर क्या करना है, दो वेक्टर्स मानने हैं और उनका सम बताना है. क्लियर? फिर उनका डिफरेंस और उनकी कंडीशन. तो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूं मैंने दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. अगर मुझे क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड निकलवाना है, तो क्या करती मैं? आई विल पुट इट इनटू द फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब जो ये थीटा है, ये थीटा क्या है? थीटा इज बेसिकली द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर. ओके, अब जैसे हमने सम निकालना है, इन द सिमिलर वे वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस. ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके, हमने a प्लस बी निकाला. सिमिलर वे वी विल टेक a माइनस बी. a माइनस बी वैक्टर कैसे लिखेंगे? इन द सिमिलर वे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus 2ab cos theta. This will be your equation 1, this will be your equation 2. So as per the calculations, we will see vector a plus vector b का मोड बराबर होगा वेक्टर ए के माइनस वेक्टर बी के
मोड के। तो इसका मतलब क्या है? कैन आई राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta is equals to a square plus b square minus 2ab cos theta। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ पूरी इक्वेशन को, टर्म को जीरो कर दो, 4ab cos theta is equals to 0। तो ab cos theta is equals to 0। तो cos theta is equals to 0, इसका मतलब क्या होगा? थीटा की वैल्यू कितनी मिली? 90 डिग्री। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, नाउ moving to the next question. Question number 24. In 24th question, you will see a question says, if the sum of two unit vector, अगर जो सम है दो यूनिट वेक्टर का वो क्या हो? यूनिट वेक्टर। तो जो मैग्नीट्यूड होगा उनके डिफरेंस का वो क्या होगा? ओके, देखिए, जैसे कि हमें पता है, हमने दो वेक्टर्स लिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये क्या लिए? यूनिट वेक्टर्स। ओके, अब इन्होंने क्या करे? दो वेक्टर माने जिनका सम क्या है वो भी क्या होगा? यूनिट वेक्टर ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी, मतलब ए का मोड, रुको, ए एंड बी एक यूनिट वेक्टर हो गए, तो ए प्लस बी वेक्टर से हमें क्या मिलेगा? सी वेक्टर। क्लियर? जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मोड होगा ए का वो बराबर होगा मोड ऑफ बी बराबर होगा मोड ऑफ सी। ओके, इज इक्वल्स टू 1। नाउ जो मैग्नीट्यूड होगा सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के सम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम कैसे निकालेंगे? दैट विल बी रिटन एज ए प्लस बी मोड का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर, मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? तो यहाँ से आएगी 1 + 1 + 2ab cos थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ab cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के 1/2। क्लियर? तो ab cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के 1/2। नाउ ये तो हमने क्या निकाला? दो वेक्टर्स का सम निकाला। अगर मैं क्या करूं, इसका क्या निकाल दूं? डिफरेंस। देन व्हाट आई हैव टू डू? सी। देखो, सो डिफरेंस। क्लियर? डिफरेंस में क्या करेंगे? मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए टू बी कॉस थीटा। क्लियर? ए माइनस बी का स्क्वायर भी हमने खोल दिया। खोलने के बाद वापस से इसमें हम वेक्टर्स पुट करेंगे, वेक्टर्स की वैल्यू ए माइनस बी में आएगा मोड ए की वैल्यू 1, मोड बी की वैल्यू 1। नाउ माइनस 2 × अब यहाँ देखो,
यहाँ की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू पुट करूँ तो ये आएगा माइनस के 1/2, क्लियर, इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं इसमें रखूँ 2 + 1 दैट इज 3, यस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ a माइनस b क्या हो रहा है, इज इक्वल्स टू √3. The difference between the two vectors a and b is √3, and the sum of two vectors ab cos theta is equals to minus k 1/2. Clear? Okay. So I can say that option number A, option number A will be the right answer. Now, moving to the next question. This is the last question of today's marathon class. Okay. See, in this question, it says that, just a second. It says that a force की value given है आपको. ये क्या given है? This is the value of force. और ये आपको point given है. आपको टॉर्क निकालना है, जबकि आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F. ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. R की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, R माइनस R0 करके. क्लियर? सो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 3i माइनस 2j माइनस 3k माइनस i प्लस 2j प्लस 3k. ओके, तो अगर मैं इनको कट सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी. आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, आर की वैल्यू आएगी 2i माइनस 4j माइनस के 6k. तो ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर. अब आपको क्या करना है, आर और एफ के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे. क्लियर? हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे. आई कैप जे कैप के कैप, ये हो जाएगा 4 2 माइनस के 5 माइनस का 4 3 माइनस के 6. ओके, अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आई की टर्म निकालूंगी. आई की टर्म निकालूंगी तो इन सबको छुपा देंगे, बस हम देखेंगे इन चार को. क्लियर? तो ये हो जाएगी हमारी 30 माइनस माइनस के 1/2, सॉरी 30 माइनस माइनस, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, दिस इज 5 माइनस के 5. ओके ओके, नाउ ऐसे ही हम क्या करेंगे भाई, ये तो हमने इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, माइनस का साइन इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर ली, फिर माइनस का जे. अब कैसे करेंगे, जे में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -6 में, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 8 6 4 सा 24 माइनस के 24. फिर अब यहाँ पे देखो, ये इसकी मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल रहा है, इट विल बी 6. ओके, देन +7, तो ये हो जाएगा +7 7 में ये वाली छुपा लो, ये वाली, तो 4 4 से 16 16 माइनस माइनस का 10, ये हो जाएगा 30 + 12
30 plus 12 minus j 30 plus k minus k 16 plus 10. Clear? So on solving it, we get the formula torque 42I plus 30J minus 6K. Okay. Now you will see this is the value. Now answer is coming 42 30 minus 6. Yes. So we will see that option number A, 42I plus 30J minus 6K will be the right answer. Okay. So thank you. Have a nice day. Have a great day ahead. I hope आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी. If in case do you have any problem, please let me know in the comment section. I will definitely going to resolve it. Okay. So thank you. Have a nice day. God bless you.